Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I am audible to each and everyone. Right. So today we will start the discussion of the paper which took place in September. Right. We will discuss all the 100 question of this paper. Right. Starting from each and every detail explanation. Already we handed over this on some time back, like some 10 to 12 days back. We handed over this solution, and I hope that you people are enjoying the fruits of the same, right? So let's start with the discussion without any delay, right? We will start with each and every question. So this discussion is about the having the conceptual details which we have embedded into the UGC net 2nd September 2014, right? Environmental science, which is paper 2, right? Just a minute. So let's move to the first question, which was very easy question, and it's a sort of like the neat type of question, I would say, right? Very simple one, and the question was from ecology, right? So we can say here that what kind of question is this? As you can see on my chat box, it says that primary producers convert 1% of energy available to them to net primary production. This is the key line which was hinting the questions to be how it has to be solved. And there is a trophical efficiency of 10% for each link of the food chain. What would be the energy available to tertiary consumer in an idealized pyramid when, right, when the 1 lakh, sorry, 10 lakh joule of sunlight is available. So the question is quite simple, not a complicated one, and how we have to approach it. The approach is very simple. It is basically based on Lindman's 10% energy rule, and you can start with the same thing like we have 10 lakh joule of energy. So we have mentioned here start with the amount of sunlight energy available. So that is 10 lakh joule. And the question already says that only the question already says that only 1% of this energy is converted into NPP. So because we all of us are aware that NPP is the thing which is received to herbivore. So that's why we will uh, first convert this into the 1%. So 1% of this will be your 10,000 joule as mentioned here, right? So once you have this 10,000 joule, now we can do the uh, all that balancing things and all. So we can design a pyramid where you can see that we have herbivore, right? Where the NPP will be stored in their body. So they will be having this NPP in the form of 10,000 joule as mentioned here. Then we will be having primary consumer, right? Then we be having secondary consumer, and then we will be having tertiary consumer because they have asked at the level of tertiary consumer. So if you do this mathematics here, you will be that know that 90% is lost, right? Only 10% will be to the next level, means 1 by 10th of this. So here we will be having 1000 joule. In the next level we will be having 100 joule. In the very next level we will be having 10 joule. So this is the simplistic solution which you can expect for this question, right? So you can simply understand that only 10% is available. So the final answer for this question is 10 joule, which is the fourth choice. As you can see here, the 10 joule is the correct answer. So the correct answer here would be 10 joule as we have done.
And we have added all the details and explanation very nicely in the solution step by step manner so that nobody have any issue in understanding this question. And you can see that the final energy available is 10 joule. Is it clear to each and everyone? Anyone having any doubt in this question? Quickly, guys. Response very quickly so that we can utilize each second of the session. Please respond quickly. Anyone having any issue in this? I hope it is clear to each and everyone. This is basically a, if I go correctly, it's a neat type of question, right? 12th based question from ecology, not the up to the depth of master's level. But still, yes, you need a bit of calculation and thought process here, which is needed in this question, which must be essential for each and everyone. So now let's move to the next question. Without wasting any further time, let's move to the next question. Yeah, so let's move to the next question, which is the question number 2. So what it says, let's have a look. The question number 2 says, it's a very simple question and repeated multiple times. Let me tell you in advance, it have been repeated multiple times, right? Multiple times it have been repeated. And the question is from EIA, right? Which have been taken by Manisha ma'am this time in this semester. So you can see here that the formalized, systematic and comprehensive process of evaluating the environmental impact of a policy, program, plan and its alternative, as well as using the finding in publicly accountable decision making refers to as. So basically, guys, this is called a strategic environmental assessment, right? Here you have been given 4 choices, but this kind of EIA, which is basically involved in the policy, program, plan and alternative, as well as finalizing or finding the public accountable decision, that is called strategic environmental assessment. We can look into the details of each and every one of them. So first is a CIA, which is a comprehensive impact assessment. So as you can see, we have mentioned in detail what is a comprehensive impact assessment. It is a systematic process to evaluate the potential environmental, social, economic and cultural impact of a policy, project, an action before it is implemented, right? And the goal of CIA, which is comprehensive impact assessment, is to predict the effect of proposed activity and help decision maker to minimize the negative consequences and maximize positive outcome. And it is often used in the context of large scale projects such as infrastructure development, natural resource exploitation or policy changes. So it's on a very big scale, right? It's on a very big scale, and nothing have been mentioned about systematic and comprehensive. And environmental impact, you can see the key component of comprehensive impact assessment, which is CIA, is biodiversity, air, water, climate, land use, and natural resource, social impact also, economic, cultural, and cumulative impact. Then we have the second one, which is mentioned there, environmental impact assessment. All of you are aware that it is a tool to evaluate the prospective impact of the activity proposed. So environmental impact assessment is a process used to evaluate the potential environmental consequences of a proposed project or action before it is carried out. And the purpose of EIA is to ensure decision makers to consider environmental impact when making the decision and aiming to provide the minimize the damage to the environment. So all details have been incorporated in the solution, and this is available to you right back from 15 to 14 days. So I hope everyone is reading and enjoying it, but we have to discuss it in detail. Third is the interpreted impact assessment. So interpreted impact assessment is basically nothing, but it's like typically refers to more context sensitive evaluation, like for a particular stuff, right? Potential consequences of project, action, policy on the environment, society, economy and cultural. And this approach goes beyond just assessing the direct indirect impact and include interpreting the significance and broader implication of the impact based on the range of factors such as local context, long term sustainability and stakeholder perspective. So इसको हम बहुत लंबे टाइम के लिए, से लेट अस सपोज करिए हम ये भी देखते हैं कि 50 साल 100 साल में क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तो दैट इज बेसिकली द सॉर्ट ऑफ
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म में देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट which have been mentioned and is the correct answer for the given question. So you can see here that SIA, which is strategic environmental assessment, and this question have been repeated multiple times. So strategic environmental assessment is a process used to evaluate the environmental impact of policies, plan and program, which is also called as PPP, at a strategic level rather than focusing on specific projects like environmental impact assessment does. And CI is designed to assess the broader long-term environmental effect of high-level decision, ensuring the sustainability, environmental consideration are integrated into the planning and decision-making process for the outset. तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन की डिमांड थी, where they have asked about all the details, right? So all the details have been incorporated, and they basically are indicating to a particular type of stuff, which is you can see in the question that they have asked the specific point कि एक फॉर्मलाइज टाइप का आपका होगा सिस्टम एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस इवैल्यूएटिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी अगर आपने इंप्लीमेंट की है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कोई भी प्रोग्राम आपने प्लान अल्टरनेटिव दिया है, ठीक है, एंड एज वेल यूजिंग द फाइंडिंग इन पब्लिक अकाउंटेबल डिसीजन मेकिंग कि फ्यूचर में वो पब्लिक को कैसे। तो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट जिसको हम SEA कहते हैं वो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन माइट रिपीट इन फ्यूचर, काफी बार ये रिपीट हुआ है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज द फोर्थ आंसर विच इज स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? क्विकली, किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो बता सकते हैं जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, दोनों में कंफ्यूजन। की पॉइंट ये है कि यहाँ पे पॉलिसीज को पर्टिकुलरली आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मलाइज होगा, सिस्टमैटिक होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हम किसी पॉलिसी के इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ना भी हो, पॉलिसी जरूर होगी, राइट। कोई प्रोग्राम प्लान भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अल्टरनेटिव भी देखेंगे कि इस पब्लिक इस पॉलिसी या इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का पब्लिक में क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। इज दिस क्लियर टू प्रिया पाठक एंड शिक्षा यादव? जल्दी बताइए, क्लियर है? नहीं, इंटरप्रिटेशन में पर्टिकुलरली एक चीज को हम देख रहे हैं ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने देखा नहीं शायद, जब आप इंटरप्रिटेशन वाली बात कर रहे हैं, इंटरप्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली या किसी एक्शन, ठीक है, और उसके बाद पॉलिसी आ रही है, वहां पे प्रोजेक्ट और एक्शन भी आ गया ना, ठीक है ना, और पर्टिकुलर एक कल्चर का, तो इसमें काफी ब्रॉड इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल रहेगा, अनसस्टेनेबल रहेगा, स्टेक होल्डर के प्रोस्पेक्टिव से कैसा है, यहाँ पे इन चीजों की बात की जाती है, ठीक है। हाँ, ये में है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक, कॉम्प्रहेंसिव और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ए पॉलिसी, ठीक है, या प्रोग्राम प्लान, उसके लिए टर्म जो यूज होती है वो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट ही यूज होती है, और साथ में आप उसका अल्टरनेटिव भी देंगे, ठीक है, कि अगर ये पॉलिसी ना ला सके तो इस प्रोग्राम प्लान को आप एज ए अल्टरनेटिव ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए जी, आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे दी है। अच्छा क्वेश्चन अगला नंबर आ रहा है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका 53, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आपने ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये आपको बुकलेट में हम पढ़ाते हैं बकायदा, ठीक है, ये आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है, और डायरेक्टली ये आपके मिनरल एंड रॉक से आया है, ठीक है, बुकलेट 2 में ये मेंशन है, ठीक है। ब्रॉडली अगर मैं देखने जाऊंगा तो ब्रॉडली तो मैं डायरेक्टली इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ, ठीक है।
मुझे इसमें कोई इशू नहीं है डायरेक्टली क्लासिफाई करने में। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इंट्रूसिव रॉक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन हुआ है द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दैट कंटेन यूजुअली लार्ज मिनरल ग्रेन। तो यहाँ पे दो तरह का ग्रेन साइज होता है गाइज, एक होता है कोर्स ग्रेन, एक होता है फाइन ग्रेन। और जब आप कोर्स ग्रेन की बात करते हो तो 5 mm या उससे ज्यादा का साइज हम देखते हैं, और 1 mm के आसपास फाइन ग्रेन आपका है, इंटरमीडिएट उसके बीच में है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे एक टेबल आपको दिखेगा, अभी मैं दिखाता हूँ वो टेबल आपको, जिससे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। ये आपके बुकलेट में भी है। तो जब आप कहते हैं कोर्स ग्रेन है, तो कोर्स ग्रेन में ये ध्यान रखना है आपको कि स्लो होती है कूलिंग, और इंट्रूसिव जनरली आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, इंट्रूसिव बेसिकली प्लूटोनिक होता है और एक्सक्लूसिव आपका वोल्केनिक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इजी क्वेश्चन था वैसे तो, बट फिर भी बहुत से लोगों ने इसको गलत किया है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बोला कोर्स ग्रेन है, तो कोर्स ग्रेन में स्लो कूलिंग होगी और इंट्रूसिव होगा, और फेनेरेटिक टेक्सचर उसका रहता है। इसमें आपके ग्रेनाइट आ जाएंगे इंट्रूसिव में, गबैरो आ जाएगा, डायोराइट आ जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं जो आपके फाइन ग्रेन है। तो फाइन ग्रेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रैपिड कूलिंग होगी, एक्सट्रूसिव होगा। ए फेनेटिक आते हैं जिसमें शेप क्लियर नहीं है, बेसॉल्ट और रायोलाइट, ये दोनों फाइन ग्रेन में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बेसॉल्ट और रायोलाइट है वो दोनों आपके फाइन ग्रेन है। ठीक है ना, ठीक है जी। और जो आपके गबैरो है, ठीक है, और ग्रेनाइट है, ये कोर्स ग्रेन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरिटी मिल गई। और उसके अलावा एक चीज का और जिक्र किया है इसमें, ग्लासी रॉक। ठीक है ना, जो हमने मेंशन की हुई है ग्लासी रॉक, जो आपकी है एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग होगी, कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पे ऑब्सीडियन और प्यूमाई स्टोन का जिक्र होता है, दो चीजों का। वैसे तो हमने बहुत सारी डिटेल यहाँ पे ऐड ऑन आपको दी है सारी, है ना, लेकिन ये मेन 3 पॉइंट थे जिनके अक्रॉस ये क्वेश्चन मूव कर रहा था, कि कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन और ग्लासी। तो बस फिर आप डिटेल तो हमने सारी मेंशन कर ही दी है यहाँ पे आपको, कि जैसे हमने सारा आपको डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन किया है दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी। और पैग्मेटेटिक जो रॉक होता है वो क्या होता है, तो पैग्मेटेटिक गाइस एक इंट्रूसिव टाइप का रॉक होता है आपका। ठीक है, तो पैग्मेटेटिव इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्शनली लार्ज मिनरल। तो कोर्स ग्रेन है, much larger than those found typically coarse grain rock like granite, and the large crystal are of result of slow cooling of magma which provide the enough time to mineral to grow as much as larger। तो यहाँ पे हमें ये क्लियरिटी मिल रही है कि भाई जो पैग्मेटाइट है वो आपका लार्ज ग्रेन साइज होता है और इंट्रूसिव रहता है। वो मेंशन भी है कूलिंग रेट के हिसाब से कि कैसा रहेगा। और एक्सक्लूसिव रॉक को भी हमने यहाँ पे रखा है ना। तो बस हम वापस चलते हैं इसमें, और वी कैन डील विद द डिटेल वी हैव ऑलरेडी एडेड। तो हम यहाँ पे बस डायरेक्टली इसको कट शॉर्ट डिटेलिंग में मेंशन कर देते हैं दैट कट शॉर्ट डिटेलिंग में हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे फटाफट से क्विकली दैट व्हाट आर द। तो इंट्रूसिव आपकी प्लूटोनिक होती है। ठीक है जी, और पैग्मेटाइट भी एक इंट्रूसिव है लेकिन कोर्स ग्रेन है। अब यहाँ पे जो बात हुई है कि आपका जी बेसॉल्ट है मेरे पास, और सिंपली दूसरा स्ट्रक्चर जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे विच इज रायोलाइट। और मैंने भी आपको ये बता दिया है कि भाई जो आपका बेसॉल्ट है, ठीक है, और रायोलाइट है, वो दोनों के दोनों फाइन ग्रेन है। तो बस हम मेंशन करने से हम सेग्रीगेट कर पाएंगे, ये भी फाइन ग्रेन हो गया, ठीक है, रायोलाइट भी फाइन ग्रेन हो गया साहब। ठीक है, तो बेसॉल्ट भी फाइन ग्रेन, रायोलाइट भी फाइन ग्रेन। जो ऑब्सीडियन है हमने मेंशन किया कि ऑब्सीडियन तो एक तरह का ग्लासी रॉक है, कोई क्रिस्टल बनता ही नहीं है इसमें। ठीक है, और एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग होती है, तो स्लो कूलिंग तो है नहीं यहाँ पे, एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग है। और ये तो ग्लासी रॉक है एक तरह का। ठीक है, सॉरी, ग्लासी रॉक है ऑब्सीडियन, राइट, ऑब्सीडियन इज अ ग्लासी रॉक। ये वहां भी हमने आपको लेक्चर में भी मेंशन किया था कि ऑब्सीडियन ग्लासी रॉक है आपका, है ना। और जो एक ऑप्शन आपकी बच गई है इसमें, पैग्मेटाइट। तो पैग्मेटाइट तो आपको पता ही है कि पैग्मेटाइट जो हमने इसमें मेंशन किया हुआ है वो इंट्रूसिव है, इग्नियस है और कोर्स ग्रेन है ना। तो पैग्मेटाइट ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पैग्मेटाइट पूछा भी है, इंट्रूसिव है, यस इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव विच इज बेसिकली इनसाइड, और वही प्लूटोनिक भी होता है ना।
और ये लार्ज ग्रेन है तो बिल्कुल है जी, लार्ज ग्रेन है, कोर्स ग्रेन साइज होता है इसका, कोर्स क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका लार्ज ग्रेन भी है, तो यही फिट बैठता है इस ऑप्शन में। एंड ऑल द डिटेल्स हैव बीन एडेड इन द सफिशिएंट क्वांटिटीज टू हैव द गुड सपोर्टिंग लिटरेचर फॉर द सेम, जिससे आपको और भी प्रोबेबल क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी रहेगी इफ एग्जामिनर go left right to the same. So the correct answer here is pegmatite, right? और pegmatite भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया है रॉक्स में, क्योंकि ये सेक्शन इस बार मैंने ही लिया है, तो मुझे पता है कि पैग्मेटाइट और पैग्मेटिटिक ग्रेनाइट को बड़ा डिस्कशन हमने किया है इस बार मिनरल एंड रॉक्स में, और काफी वेटेज इस बार मिनरल एंड रॉक्स ले सकता है। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी पैग्मेटाइट, राइट? So correct answer is pegmatite for question number 53. Is this question clear to each and everyone? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी, क्विकली गाइस। Anyone having any doubt in question number 53? Correct answer here is pegmatite, right? So pegmatite is the correct answer here. चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, so let's move forward and talk about the more literature. बहुत अच्छी और प्रिसाइज और कंसाइज इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इंक्लूड की है विच शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी, और आप लोगों को बहुत इसका प्लस पॉइंट रहेगा इफ यू गो थ्रू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आई गेस देयर विल बी अ गुड एडवांटेज इन द अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो। और एक बहुत यूनिक फैसिलिटी जो PYQ क्लाउड इस बार से इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब वो चीज आपको बहुत हैविली थ्रस्ट देगी एग्जाम के अंदर, मेरा अपना ऐसा एक्सपीरियंस है, because that is a very unique facility. Nobody in the India have started that. We are the first people who have started that, which is like a plug and play option for all the students. So it should be an advantage for each of you कि आप किसी भी स्पीड से पढ़ सकते हैं सिलेबस को। जैसे बोलते हैं ना कि कम समय रहा है तो हम 4x करना चाहते हैं अपनी स्पीड, आप 4x पे भी उसको कर सकते हैं, 3x 2x 1x। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम अवेलेबल। तो वो ऐसे बच्चों के लिए जो टाइम बाउंड होके काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और लेक्चर क्लाउड तो आपके हैं ही जो हैं, प्लस लाइव सेशन आर समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54। दिस क्वेश्चन हैव बीन टेकन फ्रॉम redox reaction एंड environmental chemistry if I say, और ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, और ये पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता था इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। थोड़ा सा भी अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आइडिया है, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में आइडिया है, तो आप इजीली इसको असेस कर सकते थे, बट मैं इसको आपको डिटेल में सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल स्पीशीज को लें और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। अब देखिए इसने एक अच्छी बात यहाँ पे मेंशन की है, अगर जो लोगों ने ना इसको देखा हो तो, in question number 54 they are saying match the list 1 and 2, and in the right hand side you can say oxidation number of nitrogen और सल्फर, दोनों में से कोई भी एटम अगर है, जैसे पहली स्पीशीज HS माइनस है, उसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड स्पीशीज N2O है, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है हर बच्चे को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत से लोगों को समझ में यही नहीं आ रहा था कि भाई ऑक्सीजन का कैलकुलेट करे कि नाइट्रोजन का N2O में, और थर्ड वाले में कि जी नाइट्रोजन का कैलकुलेट करे या एल्काइल ग्रुप का कैलकुलेट करे। तो ये एक असेसमेंट जो है इट शुड बी डायरेक्ट। ये असेसमेंट आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट करनी है कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसने क्लियरली मेंशन किया है कि जहां पे नाइट्रोजन है उसमें नाइट्रोजन का आप कैलकुलेट करिए, और जहां पे सल्फर है उसमें सल्फर का करिए। तो मुझे तो समझ में आ गया कि पहले वाले में मुझे सल्फर का कैलकुलेट करना है, दूसरे में नाइट्रोजन का, तीसरे में सल्फर का, और चौथे में भी नाइट्रोजन का। बस जैसे ही ये क्लियरिटी आपको आती है उसके बाद कोई भी चीज आपको रोकने वाली नहीं है यहाँ पे। और ये 11th क्लास की NCERT में भी ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री की, बिकॉज वी डील विद द JEE पीपल ऑल्सो एट सम एक्सटेंट, तो हमें पता है ये बात। तो जैसे हमने हाइड्रोसल्फाइड का लिया HS माइनस का, तो इसको इजीली कैलकुलेट करने का आसान तरीका है बहुत ज्यादा। देखिए तो इन HS माइनस आयन जो हाइड्रोसल्फाइड है आपका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और बहुत ही सिंपल है क्योंकि पूरी जो होल स्पीशीज है उसके ऊपर चार्ज -1 है। तो वैसे तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज करिए आपने HS माइनस का कैलकुलेट करना है,
तो मैंने सल्फर को x मान लिया, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं दैट 1 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू -1, तो x विल बी इक्वल टू -2। तो सल्फर के लिए मैंने x माना है गाइज, यहाँ पे मैं पहले बता दूं। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 आ गया। जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 आया, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए भाई -2 तो एक ही जगह पे है, तो दिस विल गो विद दिस। अब कई बार क्या होता है, ये मैचिंग वाले क्वेश्चनों के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको इंडिकेट करूंगा कि आपको सारे ऑप्शंस चेक कर लेने चाहिए। जैसे ही ए आपका 2 से मैच हुआ, वैसे ही आपकी दो चॉइसेस एलिमिनेट हो गई। दिस चॉइस इज गॉन एंड दिस चॉइस इज गॉन। अब मुझे बहुत ईज हो जाएगा क्वेश्चन को फिल्टर आउट करने में, राइट? बहुत ईज हो जाएगा मुझे क्वेश्चन को फिल्टर आउट करने में। और क्वेश्चन को फिल्टर आउट करने के बाद मैं इजीली इसको कह सकता हूं कि भाई अब N2O का कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जैसे ही द मोमेंट यू स्टार्टेड विद द N2O, सो N2O में क्या अप्रोच लेनी है? हियर आई विल टेक नाइट्रोजन एज x, तो इट विल बी 2x। ऑक्सीजन का -2 होता है, शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी स्पीशीज के ऊपर चार्ज 0 है। तो 2x विल बी +2 एंड x विल बी +1। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +1। तो बी आपका चला जाएगा 3 के साथ, तो बी चला गया 3 के साथ। अब आंसर मेरा फिल्टर आउट हो गया वैसे तो, लेकिन मुझे सारे ऑप्शंस का डिटेल पता होना चाहिए। अगर बी 3 के साथ चला गया है तो ये ऑप्शन भी कट हो गया गाइस, लेकिन फिर भी हमें सबका पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर तो आपका थर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर S2- ऑल्सो। तो S2 2- आप करेंगे, यहाँ पे आपने सल्फर को x मान लिया, तो 2x शुड बी इक्वल टू -2, तो x विल कम एज -1, तो C विल गो टू 1। तो C आपका 1 पे चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है, C विल गो टू 1। ये मैचिंग आपका हो गया जो कि फिट बैठ रहा है। और D जो आपका है, ठीक है, जो D आपका दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, उसको भी हम कर लेते हैं। वैसे तो ये छोटे क्वेश्चन है, बट आई थिंक पीपल शुड नो दीज क्वेश्चंस वेल, ठीक है, ये सबको आने चाहिए। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है ना जो आपको लटका देती है वहां पे। ये अमीन है एक तरह का, और कैसा अमीन है ये जी? आपका सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन जब आप लेते हैं तो यहाँ पे जो आर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे आर एल्काइल ग्रुप जो है आपने ले लिया, तो इसको हम +1 में लेंगे। तो सेकेंडरी अमीन के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, यू से दैट आर का +1 है एल्काइल ग्रुप का, तो 2, जस्ट अ मिनट, उसको आप x मान लेंगे, जो आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन इसमें। तो +2 प्लस एक्स +1 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी स्पीशीज पे चार्ज 0 है, और x आ जाएगा आपका -3। तो फाइनली डी जो है आपका फोर्थ पे चला जाएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 54 शुड बी थर्ड। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो आपका 3 होना चाहिए। आई होप किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इन केस एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो ये क्रिस्टल क्लियर है एकदम, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बता दूं, आप ये मत सोचना ये कि ये PhD लेवल का क्वेश्चन है। एनीवन हैविंग एनी डाउट, ऑल द पीपल जल्दी बताइए भाई। आकांक्षा, अंजलि, दिव्या, गुड्डी शर्मा, हिना, करुणा, किरण, स्वरूपा, मित्तल खत्री, प्रिया पाठक, रश्मि, शिक्षा यादव, सौरभ रॉय चौधरी, विजीता, युगांशी एंड ऑल अदर पीपल हु आर सिटिंग हियर। क्योंकि देखिए, ये जो डिस्कशन है सोल्यूशन के बाद, ये इसीलिए रखा जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट, प्लीज लेट अस नो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बिफोर यू गो फॉर एग्जाम। दैट इज वेरी मच एसेंशियल कि आपको लॉजिकली ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। क्लियर है? चलिए जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 55। इसके स्टेप वाइज डिटेल इस क्वेश्चन के सारे आपके सोल्यूशन के अंदर है, सो यू नीड नॉट टू बी वरीड, ठीक है। एंड आवर टीम इज 24/7 अवेलेबल। वहां भी आप ग्रुप पे भी अपनी डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप सबको उसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, ये मैम ने आपको क्लास में कराया भी है और मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया है। अब बहुत से लोगों का, जैसे एक मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा अभी रिसेंटली कि सर इसमें हमने टी टेस्ट या जेड टेस्ट का फार्मूला क्यों नहीं यूज किया। मुझे आप एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वेयर द क्वेश्चन डिड दे आस्क एनीथिंग अबाउट टी और जेड? नहीं, इस क्वेश्चन को टी और जेड पे जाना ही नहीं था। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लॉजिकली स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 55 says that the standard error of mean for normally distributed data is 256 on 256 observation was estimated as 0.1। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये बनता है यहाँ पे। दूसरा पार्ट क्या बनता है, what would be the possible limits for covering 95% of the observation? दूसरा पार्ट ये है, and they have mentioned you about the mean if the value of the mean is 60। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मेरा सिंपल सा काम था पहले कि मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला यूज करूं विच इज सिग्मा बाय रूट एन। तो जैसे ही गाइस मैं लिखूंगा दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज सिग्मा बाय रूट एन, वेयर एन इज द ऑब्जर्वेशन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 256 ऑब्जर्वेशन दी हुई है एन, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दिया हुआ है आपको 0.1। दिस इज 0.1 एंड एन इज 256। तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो गया, मैंने सिग्मा कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यही चीज हमने पहले स्टेप में की है, विच वी हैव पुट systematically into the question that sigma is being calculated, which you can see that sigma which is standard deviation will come out to be 1.6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको 1.6 मिलेगा। 0.1 multiply by 256 and root of 256 is 16 as mentioned here, so SD या सिग्मा आपका आ गया 1.6। ये बात से सब एग्री कर रहे हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि साहब 95% ऑब्जर्वेशन कितने में कवर होगी? तो आपको ये पता है कि जब भी आप 95% ऑफ द डाटा सेट या लिमिट्स की बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, वेयर द 95% डाटा इज बीइंग कवर्ड इट्स लाइक प्लस माइनस 2 सिग्मा, और 99 3 सिग्मा में एंड 68 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑन 1 सिग्मा। राइट, आई होप एवरीवन विल एग्री विद दिस कि जब भी हमें प्लस माइनस 2 सिग्मा डाटा लिमिट कवर करनी होती है तो 95% डाटा ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थंब रूल है एंड इट हैव बीन टॉट टू यू इन द क्लास, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये बात आपको क्लियर हुई तो फिर साहब कोई चैलेंज रह ही नहीं गया था ना। मुझे तो सिर्फ x प्लस माइनस 2 सिग्मा लिमिट्स कैलकुलेट करनी थी, और जैसे ही अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं आपको मीन दे रहा हूं, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 60, और आप कैलकुलेट कर लीजिए x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा भी आपको वैल्यू दी हुई है, सिग्मा आपको वैल्यू दी हुई है 1.6, तो फाइनली मेरे पास क्या बना, मीन हुआ 60। सो आई जस्ट हैव टू राइट दिस इक्वेशन, x प्लस माइनस 2 सिग्मा मुझे कैलकुलेट करना है। एक बार मैं लिखूंगा मीन प्लस 2 सिग्मा, और दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, मीन माइनस 2 सिग्मा। तो जब आप लिखेंगे मीन प्लस 2 सिग्मा तो x प्लस 2 सिग्मा मीन्स 1.6, ये हो जाएगा 60 प्लस 3.2, और एक बार लिमिट हो जाएगी x माइनस 2 सिग्मा विच इज 60 माइनस 2 इंटू 1.6 विच इज 60 माइनस 3.2। तो ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। एक बार आएगा प्लस में आएगा 63.2 और माइनस में आएगा आपका 56.8। ये नीचे हमने सॉल्व किया हुआ है इसको सारे को, ठीक है ना। व्हेन आई वाज राइटिंग दिस सॉल्यूशन ये दिमाग में था, तो यहाँ पे आपकी एक लोअर लिमिट पकड़ी गई विच इज मीन प्लस माइनस मीन माइनस 2 सिग्मा, और एक आपकी अपर लिमिट पकड़ी गई जी मीन प्लस 2 सिग्मा। अब इसमें क्या था बताओ, इस क्वेश्चन में ये अपर लिमिट आ गई आपकी और ऊपर वाली लोअर लिमिट आ गई। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको कैलकुलेट करनी थी, इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लिमिट आ गई आपकी 56.8 और अपर लिमिट आ गई 63.2, एंड दिस वाज गिवन इन वन ऑफ द चॉइस। राइट, ये एक चॉइस में दिया हुआ था विच इज चॉइस नंबर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चॉइस नंबर 2 में ये आपको दिया गया है। This is the choice number 2, 56.8 and 63.2.
एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पे आपने टी टेस्ट या जेड टेस्ट का फार्मूला क्यों नहीं यूज किया? भाई क्या उन्होंने टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दी? क्या उन्होंने जेड टेस्ट का डिस्कशन किया? तो मैं क्यों यूज करूंगा? जब मुझे अगले ने पूछा ही नहीं है कि टी जेड का कोई लेना देना है, वाई शुड बी आई इंटरेस्टेड इन यूजिंग दैट? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है कुछ भी। जब मुझसे उसने पूछा ही नहीं कि साहब हम क्वेश्चन में दे रहे हैं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जल्दी बताइए भाई, क्विकली गाइस।